Good morning, my dear students. Today we are going to start a new chapter from history, that is in the earliest cities. Before starting this chapter, I want to recapitulate the previous chapter that we have already discussed in the history. These are the very first chapter: what, where, how, and when. In this chapter, I told you the meaning of history, and I also told you about our past. I also told you about the different sources to know about our past, or what are the different evidences, or on what are the different criteria on which we came to know about our past. So I told you about the historians, about the scholars, about the archaeologists, about the sources, about the dates. So in the history, dates play a very crucial role, because in the sixth standard we were discussing about the ancient history, and in the ancient history mostly we discuss about the BC. I told you about the BC, about the dates. Our dates are divided into two categories. One is BC and second is AD. BC. BC means before the birth of Jesus Christ. The earlier time period, most of the ancient period that is unknown to us, that is known as the Stone Age. I told you about the Paleolithic age, Mesolithic age, and the Neolithic age, because we don't found about the different evidences or the written evidences about this. After this, when we entered in the civilizations, or in a domesticated life, or in a stable life, we found the different types of the objects or evidences in the regard of the history, or in the regard of our past. So अगर हम बात करते हैं कि आज से 1 लाख साल पहले, या 1 करोड़ साल पहले, या 10,000 साल पहले, या 4,000 साल पहले, या 5,000 साल पहले, या 3,000 साल पहले, तो इसका मतलब बात है आपकी बीसी। क्योंकि हम कौन से साल में रह रहे हैं बेटा? 2020 में। 2020 जो है ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन हम बात करते हैं 10,000 साल पहले की, या 20,000 साल पहले की, या 5,000 साल पहले की। तो उसके लिए एंशियंट हिस्ट्री में आपका एक टर्म यूज होती है, दैट इज दी बीसी। तो आज भी जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी जो हम ईयर्स के बारे में प्रयोग करेंगे, वो टर्म कौन सी होगी? आपकी बीसी। एक होती है बेटा आपकी एडी, एनो डोमिनी, इन दी ड्यूरिंग दी इन दी टाइम पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि आज का जो प्रेजेंट टाइम चला हुआ है उसको हम एडी के नाम से जानते हैं। यानी कि आजकल हम कौन से ईयर में रह रहे हैं बेटा? 2020। तो जो 2020 है, इसके लिए हम एडी वर्ड का यूज करते हैं। तो आई थिंक ये डेट का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दिस, in the second chapter, I told you about the from hunting gathering to growing food. If we discuss the history of human beings, we came to know that in the earliest stage of the human being, or in the primitive stage, the human being, they are just as the hunter gatherers. Means they hunting the wild animal, they follow the wild animal, they hunting them, and they gather their required things, or their needed things, or their food things. I also told you that the earlier men, they visit from one place to another place for the different reasons. So when they visited the different places for the different reason, they came to realize about the different types of the regional things. They know about that what are the edible plants, what are the different fruits that bear in different season. They also came to know about the different cereal that grow in the different region, in the different territory, or in the different climatic conditions. So these are the different things, different reasons. According to that, they move from one place to another place. So when they came to realize about the different things, different plants, so rather of wandering,
they just establish, they just stable at a place, and through that thing our domestication process was started. When the domesticated process was started, the peoples, they started to grow the different types of the crops. When they grow the different types of the crops, they also domesticated the different pets or different animals that are useful for them. So in this way, they, in this way, uh, different villages came into existence. So when the different villages came into existence, what happened at that? We are going to discuss. So this is the background of this chapter in the earliest city. Listen me very carefully. It is not written in your book, beta. Okay, I'm just telling you about the background of your the chapter. So as you are aware, in the previous chapter, we discussed the discovery of agriculture. When there is the discovery of the agriculture, the ancient people, they gave away nomadic life or the wandering lives, and they settled in small villages. These villages grew along river bank. Why on the river bank? Because you know very well that water is the main factor for our survival, because without water we can't exist. Without water we can't uh, predict the human being or other living beings life. So most of the villages, they grew on the bank of the rivers. So needs of the people increased because they tried to make their lives more comfortable. So as the human being, they started to make their life more comfortable. So they need the different types of the things that are needed, that meet their requirement. So this led to the rise of many occupation and division of labor. The farmers and the craftsmen produce much more than what they required. यानी कि जो किसान होते थे, फार्मर्स होते थे और जो क्राफ्टमैन होते थे, उनको जो चीज चाहिए थी उससे सरप्लस, उससे ज्यादा ही वो प्रोड्यूस करते थे. दिस मेड असेंशियल फॉर पीपल टू एक्सचेंज गुड विद ईच अदर. तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरों के साथ अपनी वस्तुओं को लेना देना शुरू कर दिया, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना शुरू कर दिया. They assembled at a particular place to exchange their goods for other goods which they needed. तो वो क्या करने लगे, वो एक स्थान पर इकट्ठा होने लगे, वो जो चीजें उनको चाहिए होती थी उन चीजों को आपस में एक्सचेंज कर लेते थे. आपकी एक मूवी आई थी बेटा, मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में भी आपने देखा होगा कि वहां पे उस टाइम में जो सरप्लस चीजें होती थी वो एक जगह पर ले जाकर उन चीजों को एक्सचेंज करते थे. लेकिन उस टाइम पैसे का सीजन टाइम नहीं था. उस टाइम वो क्या करते थे, वो जो चीजें हैं वस्तुओं के बदले में ही वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे. सो दैट इज द एक्सचेंज. सच अ प्लेस वॉज कोल्ड मार्केट. जहां पे इन चीजों का आदान प्रदान होता था उस स्थान को मार्केट के नाम से जाना जाने लगा. द फर्दर डेवलप इनटू द मार्केट टाउन. और धीरे धीरे ये मार्केट जो प्लेसेस हैं ये टाउन्स में आपके कन्वर्ट हो गए. सम ऑफ देम ग्रू इनटू बिग सिटीज. उनमें से कुछ ऐसे शहर हो गए जो बहुत बड़े बड़े विकसित हुए. इन दिस वे ट्रेड लेड टू ग्रोथ ऑफ सिटीज दैट वर स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, while the village is prosperous in agriculture, and the growth of trade and cities led to the rise of civilization. तो इस प्रकार से जो आपका व्यापार होना शुरू हुआ, चीजों का आदान प्रदान होना जो शुरू हुआ और जो शहरों का विकास शुरू हुआ, उसकी वजह से आपकी सिविलाइजेशन इमर्ज हुई. Now a question is coming in your mind that what do you mean by civilization? कि आप civilization से क्या समझते हैं? सिविलाइजेशन, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, इन अ सिंपल वे, सिविलाइजेशन मीन्स अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. मानवीय समाज के विकसित रूप को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन मीन्स डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इट रेफर्स टू that stage in human evolution when they started thinking not only satisfying their basic needs of food
shelter and clothing, but something more than that also. यानी कि ये सिविलाइजेशन से आप ये भी कह सकते हैं कि ये मानवीय विकास का वो दौर था जब उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान इन बेसिक नीड से हटकर सोचना शुरू कर दिया था. सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ ए सिविलाइजेशन. तो इस तरह से अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन, specialization of crafts and occupation, growth of trade and cities, emergence of writing, advancement in art and literature and science, existence of machinery to control law and order, religion with a broader outlook, and a welfare government. So these are the different features of the civilization. But you need not to worry about this. In simple word, you can say that a civilization comes into existence when there is systematic economic, social and political organization. की सभ्यता जो होती है वो उस समय विकसित होती है जब कहीं पे जो है एक सिस्टमेटिक वे से, एक सैद्धांतिक रूप से जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो. So in simple word, we can say that civilization is the डेवलप स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. की मानवीय समाज के विकसित रूप को हम सभ्यता कह सकते हैं. नाउ अ क्वेश्चन इज क्लिकिंग इन योर माइंड दैट देयर इज ओनली वन सिविलाइजेशन और मोर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव ए लुक ऑन द हिस्ट्री, अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर एगो, मैं बात कर रहा हूं बेटा 5000 साल पहले की, तो किसी से रिलेटेड है बेटा बीसी और एडी. किसी से रिलेटेड है बेटा, बोले बीसी और एडी. बीसी बेटा किसी से रिलेटेड है बेटा, बीसी. बोले बेटा किसी से रिलेटेड है, बीसी से रिलेटेड है. तो 5000 साल पहले आपकी जो है 4 सभ्यताएं विकसित हुई हैं. अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर एगो देयर वर 4 सिविलाइजेशन दैट वर डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. और ये सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं ये नदियों घाटियों के किनारों पर ही विकसित हुई है. इसमें सबसे पहले आपकी सिविलाइजेशन आती है, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा. इसमें सबसे पहले आपकी आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन. द वेरी फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, also known as Harappan civilization, that we will discuss in this chapter. The very first is Indus Valley civilization or Harappan civilization that developed on the bank of Indus River, जो Indus River नदी के किनारे पर विकसित हुई है. Second is our Chinese civilization. The Chinese civilization developed on the bank of Hwang Ho River. कौन सी नदी पे के किनारे हुई है ये, हवांग हो रिवर. सेकंड इज अवर चाइनीज सिविलाइजेशन. द थर्ड इज अवर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता. मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा बेटा, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड आपके हैं. सो इजिप्शियन सिविलाइजेशन अलोंग रिवर, दैट इज द नील रिवर. यानी कि जो आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इट डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द नील रिवर. And fourth is our Mesopotamian civilization that developed on the banks of river Euphrates and Tigris. So there were 4 civilizations that emerged approximately 5000 years ago. These are the Indus Valley civilization. Second is our Chinese civilization. Third is our Egyptian civilization, and fourth is our Mesopotamian civilization. So these were the 4 civilizations that emerged on the bank of different rivers. So today we are going to discuss that is related to our Indian subcontinent, Indus Valley civilization or Harappan civilization. This is including in the chapter of in the earliest city. अगर in the earliest city को हम Indus Valley civilization कहें या हरप्पान सिविलाइजेशन कहें तो ये गलत नहीं होगा. इट इज नॉट रॉन्ग इफ वी से दिस चैप्टर अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पान civilization. So have a look here on this
PowerPoint presentations, we are going to discuss about the Indus Valley civilization or Harappan civilization. Before starting the concept, I want to tell you something more about the Harappan civilization or the Indus Valley civilization. So, discovery of the civilization, how we discovered this civilization. Earlier, it was believed that history of India began with the coming of Aryans, that is 1500 BC. हड़प्पान सिविलाइजेशन से पहले हम ये मानते थे कि भारतीय जो सभ्यता है वो तकरीबन जो है 1500 साल पहले विकसित हुई जब भारत देश में आर्यों का आगमन हुआ. लेकिन बट द excavation of the ruins of highly planned cities or of Harappa and Mohenjo-daro push back the history of India by almost 2000 years. लेकिन जब हमको हड़प्पान सिटी के बारे में पता चला और मोहनजोदारो सिटी के बारे में पता चला तो इसने भारतीय सभ्यता को और 2000 साल पीछे ले गई, यानी कि तकरीबन 3500 साल पहले की बात है. और अगर हम एग्जैक्ट वे में बात करें तो आपकी जो ये सिविलाइजेशन है ये आपकी 4700 ईयर में आपकी ग्रो हुई थी. तो यहाँ पे आपने दो शहरों का नाम सुना बेटा, मोहनजोदारो एंड दी हड़प्पा सिटी. बेटा मोहनजोदारो इज अ सिंधी लैंग्वेज वर्ड. मोहनजोदारो जो है एक सिंधी लैंग्वेज. इंडस वैली को, इंडस रिवर को हिंदी भाषा में सिंधु नदी कहते हैं. तो इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको सिंधी लोग कहा जाता है, उनकी भाषा को भी सिंधी कहा जाता है. तो सिंधी भाषा के अकॉर्डिंग अगर आप कहें तो जो मोहनजोदारो है बेटा, मोहनजोदारो का अगर लिटरल मीनिंग हम देखें, द माउंड ऑफ डेड. लिख लीजिए बेटा, प्लीज नोट डाउन दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए आदमियों का टीला. मोहनजोदारो को हम जो है सिंधी भाषा में जो है माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जो है जानते हैं. और हड़प्पा को हम इज नोन एज द, अगर लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें, द फूड ऑफ लॉर्ड शिवा. हड़प्पा का शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है द फूड ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का भोजन. तो इस प्रकार से मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी हैं. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही आपके पार्ट हैं तो हम इनको हड़प्पान सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जानते हैं? Why we call this the Harappan civilization? Actually, my dear students, when there was the excavation occur in the Punjab region, the very first city that is found, it was the Harappa. So on the name of Harappa, and after this, what are the other cities found? They were just similar to the Harappa cities. So that's why this Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. And the time period of Harappan civilization is 4700 BC. Please note down this. The time period of Harappan civilization. Mox, do write this please. The time period of Harappan civilization is 4700 BC to 3900 BC. यानी कि हड़प्पा का जो टाइम है, हड़प्पान सिविलाइजेशन का जो टाइम है वो 4700 साल पहले से 3900 साल पहले तक का है. अब आपने देखा होगा हम यहाँ पे बैक चल रहे हैं बेटा. पहले हमने क्या लिया 47 और बाद में हमने क्या लिया 39. अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो 39 पहले आता है, 47 बाद में आता है. लेकिन हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में जो बड़ी संख्या वो पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में आएगी. तो 4700 BC से जो आपकी हड़प्पान सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है और आपकी 3900 BC तक ये आपकी चलती है. तो इसका जो विकास है इट वाज डेवलप इन 4700 BC and it ended in the 3900 BC. So have a look about the story of Harappa. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineer stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. तकरीबन आज से 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर जो है दे स्टम्बल मींस ठोकर लगना.
उनकी जो है किसी एक साइड से ठोकर लगी, दैट इज दी हड़प्पान। यानी कि कोई जब उभरी हुई चीज होती है उससे जब आपका पैर टकराता है तो हम उसको स्टम्बल बोलते हैं। तो वहां पे एक शहर उभर कर आया जिसको हड़प्पा का नाम दिया गया। इट लाइज इन द प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान। आज के टाइम में ये जो है आपका पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम लाइक ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनके लिए ये क्या था कि उनको तो बनी बनाई तैयार जो है रेडीमेड जो है हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिल गई हैं, अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिल गई हैं, और उन्होंने उन ईंटों को वहां से लेकर जाना शुरू कर दिया। सो दे कैरीड ऑफ दीज ब्रिक्स फ्रॉम द ओल्ड बिल्डिंग टू बिल्ड रेलवे लाइन। तो उस पुरानी बिल्डिंग से जो ईंटें वो मिली थी, अच्छी क्वालिटी की ईंटें जो उनको मिली, वो उन्होंने वहां से लेकर जानी शुरू कर दी और उनकी सहायता से जो है रेलवे लाइन को बनाने लगे। अराउंड 80 ईयर एगो archaeologist. What do you mean by archaeologist? I told you in the first chapter. Archaeologist means the person who study the ancient object. The person who study the ancient object. ऐसे व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तकरीबन 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट को यह महसूस हुआ that this was one of the oldest cities in the subcontinent, ये तो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई प्राचीनतम शहर था। So what happened that all other sites from where similar building were found were described as Harappan. तो इस तरह के शहरों के जैसी जहां पे सेम बिल्डिंग उनको दिखाई दी, उन सब शहरों को उन्होंने एक सिविलाइजेशन का नाम दिया, एंड दैट सिविलाइजेशन इज नोन एज दी हड़प्पान civilization. So in this chapter we are going to discuss about the Harappan civilization. This cities developed around 4700 year ago. तो ये जो शहर हैं ये तकरीबन हमारे 4700 साल पहले जो है विकसित हुए हैं। और सिंपल सी भाषा में ये अर्थ है बेटा कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पान सिविलाइजेशन है, इट इमर्ज बिफोर अप्रोक्सीमेटली बिफोर 4700 ईयर ago. Now, what was special about these cities? इन शहरों के बारे में विशेष बात क्या थी? यानी कि जो हड़प्पान जो सिटीज मिले हैं, अलग अलग जो शहर मिले हैं, इनके बारे में विशेष बात क्या थी? These cities were divided into two parts. सबसे पहली जो खास बात थी वो क्या थी बेटा कि ये जो शहर थे टू पार्ट्स में डिवाइड थे, दो भागों में इनको डिवाइड किया गया था। द पार्ट टू द वेस्ट, वो हिस्सा जो पश्चिम दिशा की ओर था, वो स्मॉलर, वो बहुत छोटा था, बट हायर, लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। इट इज कॉल्ड सीडेल, उनको जो है सीडेल के नाम से जाना जाता है। सीडेल क्या होते थे? सीडेल्स वर द सिटीज ऑफ द हड़प्पान सिविलाइजेशन दैट वर सिचुएटेड इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड दे आर स्मॉलर बट हायर। तो सीडेल जो होते थे हड़प्पान सिविलाइजेशन सिटी का एक पार्ट होते थे जो पश्चिम दिशा में आपके विकसित हुए थे, जो छोटे थे लेकिन ऊंची जगहों पर स्थित थे। द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर, लेकिन जो ईस्ट में जो आपके शहर विकसित हुए, वो पूर्व में जो विकसित हुए, दे वर द लार्जर, वो लार्जर थे बट लोअर, लेकिन नीचे की जगहों पर जो है स्थित थे। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। उस प्रकार के टाउन्स को हम लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इन शहरों में दिखाई देगा। पहला कंस्ट्रक्शन वर्क क्या दिखाई दिया आपको? सीडेल, सीडेल सिचुएटेड इन द वेस्ट, they were the smaller but situated on the higher. Second is lower town, they are situated in the east, they are larger but they are situated in the lower areas. In some cities special buildings were constructed on citadel. कई बार हमने देखा कि जो सीडेल्स होते थे उनके ऊपर जो है कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, कुछ विशेष कंस्ट्रक्शंस बनाई जाती थी। Have a look in your book, page number 33, second paragraph. In some cities, special buildings were constructed on citadel. For example, in Mohenjo-daro. मोहनजोदारो जो मैंने अभी आपको बताया था, literal meaning is the mound of dead. A very special tank
विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ। वहां पे एक विशेष टैंक बनाया गया था जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया, विशाल स्नानागार का नाम दिया गया। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, इसको जो है ईंटों की सहायता से बनाया गया, कोटेड विद प्लास्टर, और इसके ऊपर जो है प्लास्टर किया गया यानी कि सीमेंट की गई। जैसे आजकल हम घरों को बनाते हैं तो उसके ऊपर सीमेंट करते हैं, तो ऐसे ही इसके ऊपर भी जो है प्लास्टर जो है किया गया था। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और इससे बाहर पानी ना जा सके इसके लिए क्या किया गया, उसके ऊपर जो है तारकोल गिराया गया था, नेचुरल टार को गिराया गया। आज भी जब हम मकान बनाते हैं, लेंटर बनाते हैं, तो लेंटर में पानी का रिसाव ना हो, उसमें वाटर इन्फिल्ट्रेशन ना हो, तो उसके लिए हम तारकोल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ में जो है नेचुरल टार का प्रयोग किया गया ताकि पानी का रिसाव ना हो। There were steps leading down to it from two sides. इस स्नानगार में अंदर जाने के लिए दो साइड में जो है, दो जगहों पे जो है सीढ़ियां बनाई गई थी। While there were rooms on all sides, जबकि इसके चारों ओर जो है कमरे बनाए गए थे। जैसा कि आप अगर कुरुक्षेत्र की विजिट करें तो ब्रह्म सरोवर एक स्थान है आपका, वहां पे भी आपने देखा होगा कि ब्रह्म सरोवर पे जो है आपकी जो है सीढ़ियां बनाई गई हैं और कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए वहां पे जो आपके रूम्स बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से आपका मोहनजोदारो में भी जो है ग्रेट बाथ बनाया गया था। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन अ फॉर्म इन फ्रॉम अ वेल, यहाँ पे जो पानी लाया जाता था हो सकता है कि वो कुएं से लाया जाता हो, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और ड्रेन मीन्स नाली के थ्रू, यानी कि इसको प्रयोग करने के बाद इसको निकाल दिया जाता हो, यानी कि इसकी निकासी का भी प्रबंध वहां पे था। परहैप्स इंपोर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक। तो यहाँ पे जो था आपका क्या होता था कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो हो सकता है कि कुछ विशेष व्यक्ति यहाँ पे डुबकी लगाते हो, स्नान करते हो। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ब्रह्म सरोवर भी जो स्थान है, जैसे अभी संडे को आपका जो है सोलर एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा था आपका, और जब सूर्य ग्रहण का अवसर होता है तो ब्रह्म सरोवर पे बहुत से लोग जो है स्नान के लिए आते हैं ताकि उनको पुण्य प्राप्ति हो। और अगर सोलर एक्लिप्स कभी हो और अमावस्या का दिन उस दिन हो तो पुण्य का प्रभाव और बढ़ जाता, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता दी गई है। तो इसी प्रकार से वहां पे भी होली ओकेजन्स में जो है आपका जो है कुछ लोग जो है डुबकी लगाते होंगे, स्नान करते होंगे। These buildings were like tanks. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. Other cities such as कालीबंगा, ऐसे ही कुछ और स्थान मिले हैं जैसे कि कालीबंगा। एंड लोथल हैज फायर ऑल्टर, यानी कि दो और शहर मिले हैं, कालीबंगा जो आजकल जो है आपका राजस्थान में स्थित है, और आपका लोथल, लोथल आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ से आपको फायर ऑल्टर मिले हैं, पूजा की वेदी, यहाँ यानी कि जहाँ पे आप पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि पूजा जो है थोड़े ऊंचे स्थान पे बनाई जाती है और वहां पे जो है सैक्रिफाइसेस वर्क, धार्मिक अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं। तो कालीबंगा और लोथल में जो है फायर ऑल्टर्स मिले हैं वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलैबोरेट स्टोर हाउस। और इसके अतिरिक्त जो मोहनजोदारो शहर है, हड़प्पा शहर है और लोथल जो शहर है, वहां पे हमको जो है बड़े बड़े इलैबोरेट, बड़े बड़े बिग स्टोर हाउस मिले हैं जहाँ पे दैनिक जो प्रयोग की वस्तुएं जो हैं या अलग अलग जो आवश्यक वस्तुएं थी उनका जो है स्टोर किया जाता था। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू वांट टू आस्क anything regarding today lecture, you can raise hand. I will sort out your problems. Today we discuss the story of Harappa and we discuss what was the special about these city. The special about this city is the Citadel, Lower Town, Great Bath, fire altars and elaborate storehouses. These were the 5 things that were most important in this. So now we have just 4 minutes. If you want to ask anything, you can just raise hand.